Namaskar and Jai Hind to everyone. Most of you will be surprised कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, but many of you know me very well. आपने देखा है मुझे आपके बहुत मजमों में पहले भी देखा है. In Jammu, many of you have seen me. You have seen me on social media a lot, perhaps, and my tenure in Kashmir as the Corps Commander, and before that as GOC of Baramulla Division, as Commander of the Uri Brigade, as Colonel GS of the Avantipur Victor Force, before that in Kargil, before that in Siachen, before that in Punch. So I have been in and out of Jammu and Kashmir all my life. And therefore, I must start by first of all complimenting you, congratulating you. No doubt this is a momentous time that you are meeting, a fortnight or more after the momentous decision of 5th of August. मगर मैं शुरुआत करूंगा अगले 5-7 मिनट जो बात करूंगा. I find tremendous passion here, tremendous commitment here. But let me tell you, जब मैं कमीशन हुआ था 1974 में फौज में, तो मेरे ब्रिगेड कमांडर साहब जो थे उन्होंने मुझे एक स्लोगन दिया था. I have never forgotten that slogan all my life. The slogan was called होश और जोश. जितना जोश हो, जितना जोश हो, उसके साथ होश निहायत जरूरी है. We are all here impassioned. और आप जिसको सुन रहे हैं, I am essentially today a strategic analyst. आज मैं नेशनल सिक्योरिटी को देखता हूं. मोदी जी के साथ मेरी 2-3 दफे मुलाकात हुई है. I have briefed him on Kashmir. I have briefed him personally myself. I write in the national media and almost every newspaper, and you will be seeing me in the evening news channels every other day. And you know my views, the middle path views that I take. मैं समझा कि सबसे बड़ा फायदा मेरा आने का यहां पर for you should be to take a strategic analyst's view of the post Article 370 situation. मगर इसको ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि आपको ऐतिहासिक तौर पे हिस्टोरिकली यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कि 19 जनवरी 1990 हुआ क्यों. We all speak about it, but we never go deeper into the actual rationale of the subcontinent कि इसकी शुरुआत 1947 में नहीं, उससे पहले नहीं, मगर actually the whole start point is 1971. जब पाकिस्तान की मात हुई, जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, 6 साल तक पाकिस्तान की फौज सह सकी इसको. They managed to stay in their barracks. In 1977 they came back to power. Zia-ul Haq came to power and he made a basic doctrine. वो doctrine था कि कैसे, how will Pakistan take, and the Pakistan army, how it will take revenge against India. बदला कैसे हो लेंगे 1971 का. Zia-ul Haq was a man with a golden spoon, born with a golden spoon. 12-15 साल के अंदर उसको मौका मिल गया to wreak revenge against India. ये वो ऐतिहासिक हिस्सा मैं आपके लिए कवर नहीं करूंगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1989-90 when Pakistan chose to do what it did in Kashmir, the trigger for that was, the necessity was the ethnic cleansing of Kashmiri Pandits. It was necessary to send home the message. It was necessary to bring about a linkage between Pakistan and those who were emerging as the radical Muslim extremists inside Kashmir. That linkage was not alone from Pakistan, it was far deep in the Middle East. It was a part of a larger emerging issue of that time which still continues till today. Why did we allow it to happen? Because in 1989-90 India was at its weakest. मैं इसलिए आपको खास तौर पे बता रहा हूं कि you must compare to India of 1989 and 90 with the India of 2019. जो आप कह रहे हैं ना, जो आप मोदी जी की बात कह रहे हैं, इसकी पहचान के साथ आप कहिए. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. जब स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कोई इसको देखता है तो 4-5 डायमेंशन से देखता है. एक पॉलिटिकल, एक सोशल, एक इकोनॉमिक, एक मिलिट्री, एक डिप्लोमैटिक.
इन 5 डायमेंशन से देखते हैं, एक एक वाक्य आपको मैं बताता हूं कि 89-90 में क्यों हम इतने कमजोर थे। पॉलिटिकली देखिए, जो 440 सीट की मेजॉरिटी राजीव गांधी की थी 1984 में, उसका हाल क्या हुआ था 1989 में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट द सेंटर विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द डाइल्यूशन ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। आज यू आर बैक टू 303 सीट्स। ओके, नंबर 2, डिप्लोमैटिकली देखिए, पूरी दुनिया फ्लक्स में थी। बर्लिन वॉर गिर गई थी, सोवियत यूनियन टूट रहा था, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। भारत जिसको भी बोलता, whoever India would speak to internationally to complain what was happening inside Kashmir, what Pakistan was attempting to do by trying to fight a proxy war, कौन सुनता दुनिया में? There was no one to listen. The world was in a complete flux. आज, today, Prime Minister Narendra Modi yesterday was in France, is going to be in UAE. Everyone is listening to India today. कम से कम आपने देखा कि चाइना का कैंपेन भी जो हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इट इज अ नॉन रिकॉर्डेड कैंपेन, नॉट इवन रिकॉर्डेड. दैट हैज बीन द इफेक्ट. योर नेशनल पावर हैज टू बी हाई टू बी एबल टू अचीव एनीथिंग. इकोनॉमिकली आप देखिए, आज हमारे पास 420 बिलियन डॉलर हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज में. पाकिस्तान के पास कितने हैं, कोई बताएगा मुझे? 7 बिलियन डॉलर्स. 7 बिलियन डॉलर्स. 1989-90 में भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वॉज कमिंग डाउन टू द लास्ट 1 बिलियन डॉलर. आज 420 पे बैठे हैं आप. नेचुरली यू आर सच अ वीक स्टेट. इस मिलिटरली देखिए, आपकी 1 लाख जवान आपकी फौज के श्रीलंका में बैठे थे. पंजाब भी जल रहा था, नॉर्थ ईस्ट भी जल रहा था. If you allow yourself to be weakened, naturally your enemy will take advantage of you. और सोशली इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग जो सोशल मूवमेंट था, डेमोन्स्ट्रेशंस, एजिटेशन जो चल रहा था, मंडल एजिटेशन, वो 2 साल से चल रहा था. इस सब को अगर मेलजोल कर देखिए, यू विल फाइंड, अगर आप पाकिस्तान में बैठे होते, अगर आप जियाउल हक की जगह होते, जियाउल हक हैड ऑलरेडी डाइड इन 1988, बट अगर आप बेनजीर भुट्टो होते, अगर आप हामिद गुल होते जो DGISI था, अगर आप मिर्जा अफजाल बेग होते जो उनका आर्मी चीफ था, तो क्या करते? आप देखते कश्मीर की तरफ और कहते ये है मौका, करो इस वक्त, ना तो कभी मौका नहीं आएगा. एंड दैट इज वाई यू शुड रिमाइंड योरसेल्फ टुडे, इट हैपेंड टू अस, इट हैपेंड टू यू, इट हैपेंड टू द कम्युनिटी बिकॉज वी वर वीक. एंड यू शुड रिजॉल्व इन योर माइंड कि हमको कभी दोबारा ऐसे कमजोर नहीं होना चाहिए. यू शुड बी सो स्ट्रांग. एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू एट द लास्ट, आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के साथ, यूनियन टेरिटरी के बनने के साथ, इट इज नॉट एज इफ कश्मीर हैज बीन रिजॉल्व्ड. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज. यू मे नीड मेनी मोर चैलेंजेस अहेड. ये मत सोच विचार करिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है. ये एक शुरुआत है. आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑन वन इशू विच पता नहीं आपके जहन के अंदर समझ है उसकी कि नहीं, और वो ये है कि सब लोग भारत में कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर का ट्राइफर्केशन होना चाहिए, मगर ट्राइफर्केशन नहीं हुआ, सिर्फ बाइफर्केशन हुआ. और मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा है जिसको इतनी समझ थी कि जम्मू और कश्मीर को कभी बाइफर्केट मत करो, कभी अलग मत करो. क्योंकि मैं हर दफे कहता हूं, कश्मीर का मसला अगर हल होना है भारत के लिए तो जम्मू के रास्ते होगा, जम्मू के रास्ते होगा. अगर आप जम्मू को अलग कर देंगे और श्रीनगर को अलग कर देंगे, पंडितों को बिठा देंगे जम्मू में अलग, तो यह प्रॉब्लम कहां से हल होगा? All the aspirations we have of all of you to return back to your homes, I pray, wish you that you all go back there. I will work to the last for that. I will continue to do what I am doing, sensitizing the people everywhere, sensitizing the nation. मैं पूरी दुनिया में बात करता हूं इसकी. Everywhere in the world I go and speak about these issues. I am honored to be on a part of Ravindra Pandita ji's committee on Sharda, क्योंकि मैं उन इंसानों में से हूं
जिसने हवाई जहाज से शारदा को देखा है. वेरी फ्यू पीपल, नो वन, वेरी फ्यू पीपल वुड हैव नोन के देखने के बाद भी पहचानते कि ये तो शारदा समिति है. So I am devoted to that myself and I would continue working for them, advising him on this issue because इसके अंदर एक strategic समझ होनी चाहिए how to open the route for the Sharda pilgrimage. It will be a great event जिस दिन के पहले पंडितों का एक छोटा सा यूना जाएगा वहां पर. And my last thing to you is, my last advice to you is, everything will come slowly, it will not come in an express way. Continue maintaining your cultural ties with Kashmir. मैं उनमें से हूं जो गंगा बल पे गया है, मैं उनमें से हूं जो कौन सा नाग पे गया है. ठीक है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जो 8 दफे अमरनाथ यात्रा की है. 4 दफे मैं सबसे पहला इंसान था जिसने दर्शन किया था. सो आई हैव अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू योर कल्चर ऑल्सो, क्योंकि मैं समझता हूं देयर इज नो मुस्लिम एंड देयर इज नो हिंदू इन इंडिया. वी आर ऑल अल्टीमेटली इंडियंस. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. What an inspiration. Thank you very much, Ada Saab. I think your advice and blessings will always be on us, and I think we will all do it together. Thank you very much, sir.